Welcome to Civil Buzz 2.0. Hello friends, today we are going to discuss about question asked in PGCL Diploma Trainee Civil. Let's start. Question number 1 is heavy presence of pollen grain in air may cause. The right answer is hay fever. Question number 2 is what is the shape of the phreatic line in a homogeneous dam? Right answer is parabolic. Question number 3 is the decrease in void ratio per unit increase in effective stress is known as. Right answer is option number D, coefficient of compressibility. Fourth number question is there are dash equation of equilibrium for non-coplanar, non-concurrent force system. Right answer is option number D, 6. Question number 5 is vertical window provided on sloping roof are called. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डॉर्मर विंडो. ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस प्रकार का होता है डॉर्मर विंडो. क्वेश्चन नंबर 6 is what type of force acting on moving fluid is equal to the product of mass and acceleration of the flowing fluid and act in the opposite direction of acceleration. Right answer is option number 4, inertia forces. Question number 7 is which of the following bituminous material has low carbon content? Right answer is option number 1, asphalt. Question number 8 is the reaction time of driver considered for calculating side distance and overtaking side distance are respectively. Right answer is option number 1, 2.5 second and 2 second. 9 number question, in the degree of precision in measuring the offset in chain surveying, what is the limit of precision in plotting? Right answer is option number 4, 0.25 mm. Question number 10, according to IS 456/2000, the minimum cement content to be used in a reinforced concrete structure in condition of very severe exposure is. Right answer is option number 2, 340 kg per meter cube. 11 number question, what is the statement of triangle law known as? Right answer is option number 4, sine law. Question number 12, the pressure in fluid which is measured with reference to absolute vacuum pressure is called. Right answer is absolute pressure. Question number 13, the minimum width of carriageway for a 2-lane road without raised curve is. Right answer is option number 4, 7 meter. Question number 14, dash is a branch of mechanics in which the force causing the motion is taken into account. Right answer is option number 3, kinetics. Question number 15, in the analysis of continuous beam, according to IS 456/2000, the bending moment coefficient near the middle of end span for a dead and imposed load type is given as. Right answer is option number 2, 1/12.
Question number 16. A thin cylindrical cell 1 meter in diameter and 3 meter long has a thickness of 10 mm. It is subjected to an internal fluid pressure of 3 MPa. The longitudinal stress induced in the cylinder will be. Right answer is option number 3, 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देख लीजिए फ्रेंड, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है PD/4T। तो यहाँ से D और T और P दिया हुआ है, तो इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रायंगल क्लोजर इन फर्स्ट ऑर्डर ट्रायंगुलेशन? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, नॉट मोर देन 3 सेकेंड। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम ट्रायंगुलर क्लोजर होगा 3 सेकेंड, नॉट मोर देन 3 सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर की बात किया जाए तो नॉट मोर देन 8 सेकेंड, एंड थर्ड की बात किया जाए तो नॉट मोर देन 12 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18. इन द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स, द टाइप ऑफ ड्रेसिंग वेयर द स्टोन्स आर मेड मोर और लेस स्मूथ यूजिंग saw और chisel इज नॉन एज. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, प्लेन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी? राइट आंसर इज गैस जार मेथड। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि डेंसिटी बॉटल मेथड, पिक्नोमीटर मेथड, मेजरिंग फ्लास्क मेथड, गैस जार मेथड एंड श्रिंकेज लिमिट मेथड। क्वेश्चन नंबर 20. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन मटेरियल बेस्ड ऑन देयर फाइननेस वैल्यू। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, सिलिका फ्लूम। देख सकते हैं फ्रेंड, सबसे ज़्यादा फाइननेस सिलिका फ्लूम का होता है, उसके बाद फ्लाई ऐश का, इसके बाद सीमेंट का। क्वेश्चन नंबर 21 इज नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट NEPA वाज साइंड ऑन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 1 जनवरी 1970। क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर एन एक्सटर्नल माउथपीस? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 0.855। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर एक्सटर्नल माउथपीस की बात की जाए तो 0.855 होता है। अगर इंटरनल माउथपीस जो कि जब फ्री रनिंग में होगा वो 0.5 होगा, और अगर रनिंग फुल रहेगा, मतलब पूरा उससे डिस्चार्ज निकलेगा, तो 0.707 होगा। और फॉर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथपीस कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रन ऑफ कोफिशिएंट K फॉर ए वाटर टाइट रूफ सरफेस इन द एस्टिमेशन ऑफ पीक रन ऑफ? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 0.7 to 0.95। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा, अगर सरफेस का अलग अलग टाइप रहेगा तो वैल्यू ऑफ के डिफर करेगा। जैसे कि वाटर टाइट रूफ सरफेस का बात किया जाए तो 0.7 to 0.95, एंड एसफाल्ट पेवमेंट इन गुड ऑर्डर 0.85 to 0.90, स्टोन ब्रिक एंड वुड ब्लॉक पेवमेंट विथ सीमेंट जॉइंट्स 0.75 to 0.85। अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिस्पोजल मेथड इज इकोलॉजिकली मोस्ट एक्सेप्टेबल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, कंपोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 25. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट?
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, प्राइमरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं जो कि डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट वे पोल्यूटेंट होते हैं जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट या फिर अदर मटेरियल से खुद मतलब बाद में बनते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ से पहले प्राइमरी पोल्यूटेंट बन रहा है, इसके बाद फिर यहाँ से ट्रांसफॉर्म होकर सेकेंडरी पोल्यूटेंट बन रहा है। प्राइमरी पोल्यूटेंट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सब जितने जो नेचुरल में मिलते हैं वो सब आते हैं, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में ओजोन और PAN आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इज द फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन एन एयरपोर्ट फॉर द रिपेयर एंड सर्विसिंग ऑफ एयरक्राफ्ट इज कॉल्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 हंगर। Question number 27. In determination of flakiness index, the test is not applicable to size smaller than. The right answer is option number 2 6.3 mm aggregate. Question number 28. The cross wooden member of a door present at the floor level to provide lateral stability to the frame in the door is known as. Right answer is threshold. यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, सारा नेमिंग के साथ यहाँ एक गेट का दिया हुआ है, तो सारा देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं थ्रेशोल्ड है ये। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 वेरलिंग साइक्रोमीटर। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, ये इसका इमेज है। इसमें दो थर्मोमीटर लगे होते हैं, एक ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, एक वेट बल्ब थर्मोमीटर। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ए BOD रिमूवल ऑफ अप टू डैश कैन बी अचीव्ड इन एन ऑक्सीडेशन पॉइंट। इसमें बोल रहा है फ्रेंड ऑक्सीडेशन पॉइंट का एक तरह से एफिशिएंसी कितना होता है BOD रिमूवल का। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 3 90%। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।